Welcome to Aidha's Commerce Academy, and I want to take another example, means how we can apply the rules as per the double entry system. Means there is a types of account: real account, personal account, nominal account, and we have to record the financial transaction of a particular business to find out the profit or loss about a particular financial year. So for that there is a need to record all the transaction in a journal, and I thoroughly made explanation, means before this lecture, about double entry system, how you can use that, how you can record the transaction in a journal, and ruling also I made explanation before this. The first column, that is your date, third is particulars, then LF, and here is the debit amount, and next is credit amount. Credit amount. Suppose Ram started business with rupees 50,000. This is the financial transaction. Means Ram is the owner of the business, and Ram started the business. Ram started the business with rupees 50,000. So we have to think as per the double entry system. Ram started business with rupees 50,000, and we have to pass journal entry in the books of business, not in the books of Ram, because Ram is a person. He is a natural person, Ram, and this is your business. This is the business. Means what happened here? Ram invested 50,000. Ram invested 50,000 in business. Now, I am business. I am not Ram. I am business. Business think who invested? Ram invested. How much amount? 50,000. So this 50,000, think about that. This is the cash, and you can easily understand 50,000. It is a cash. So what is that? What is the nature of that transaction? Think about that. 50,000. It is a cash. So as per, means you can easily understand, cash, it is an asset, and it is a tangible assets. On that ground, think about the types of account, and you have a knowledge about that real account. All tangible and assets come under the head real account. So define this rule: debit what comes in, credit what goes out. So raise a question to this transaction: what comes in my business? Means business asks the question to this transaction. Think about that. Business asks the question as per the real account. Debit what comes in. So business raise the question: what comes in my business? So business get an answer: 50,000 comes in your business. And real account say debit what comes in. So you can means easily write down here: cash account debited to. So question raised: credit goes to, because as per the real account, credit what goes out. Think about that. In this transaction for this business, cash not goes out, cash comes in business. Cash comes. So who invested? Ram. Means Ram is a person, and Ram come under personal account. Debit the receiver, credit the giver. So raise a question about the Ram. Ram is a receiver or giver. So you can easily say, because you think on behalf of business, so you get an answer: Ram is a giver. But
down the name of that Ram because he is the owner. He is the owner, and in a natural means general parlance, you are means discussing the matter about your with your friend. भाई आजकल क्या चल रहा है? नहीं, मैंने भाई एक दुकान लगाया तो छोटा सा, क्योंकि अभी थोड़ा सा और पैसे लिए पिताजी से और लगा दिए, तो मैंने 50,000 रुपए कैपिटल लगाया। वो बोलता है 50,000 रुपए कैपिटल लगाया, उसका नाम समझो श्याम है, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा श्याम ने 50,000 रुपए लगाए, वो खुद ही बोलता है कि मैंने भाई 50,000 रुपए बिजनेस में लगाइए। ठीक है, इसी वजह से मुझे ओनर का नाम न लिखते हुए मैं एक रिप्रेजेंटेटिव इस्तेमाल करूंगा, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और हाउ मच अमाउंट इन्वेस्टेड, दैट इज 50,000। इस वजह से अपन यहाँ पे 50,000 डेबिट में लिख डालेंगे और क्रेडिट में 50,000 रुपए लिख डालेंगे। ठीक है, अब समझने के हिसाब से यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई भी मास्टर जी इंग्लिश में पढ़ा रहे, हिंदी में पढ़ा रहे या मराठी में पढ़ा रहे हैं, सामने वाले को समझ में आना चाहिए, ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। इसी वजह से थोड़ा अपन इंग्लिश और हिंदी का मिक्स करवा देंगे। ठीक है, तो अभी आपके समझ में आया होगा कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000 और आपको यह थिंक करना है कि भाई 50,000 रुपए बिजनेस में लाए और यह 50,000 रुपए कैश है। यह कैश क्या है? बिजनेस के लिए एसेट है। इस वजह से आपको तो मैंने पहले ही क्लियर करवा दिया था भाई रियल अकाउंट में क्या आएगा। रियल अकाउंट में क्या क्या आएगा? टेंजिबल एसेट, जो आपको सीधे नेकेड आई से, ओपन आई से दिखता है, जैसे टेबल है, फर्नीचर है, आपके घर में कूलर है, फ्रीज है, फैन है, बिल्डिंग है, प्लॉट है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं कि जो आपके घर में है, सोफा सेट है, चेयर्स है, ये सभी आपकी एसेट है। इसी और टेंजिबल है, दिखती है, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं आप लोग। इसी वजह से आपके दिल में, मन में तो कोई शंका होना ही नहीं चाहिए कि भाई किसी ने बोल दिया ये फ्रीज है, आप बोलेंगे नहीं आई वांट टू यूज अ माइक्रोस्कोप। देयर इज नो, विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई यू कैन इजीली जज दैट दिस इज अ मींस द फ्रीज, कूलर एक्सेट्रा व्हाटसोएवर। सो कैश इट इज एसेट और एसेट कम अंडर द रियल अकाउंट। सो डिफाइन द रूल। वो रूल क्या बोल रहा है आपको रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और मैंने भी एक सवाल किया कि भाई मेरे बिजनेस में क्या है, तो मुझे आंसर मिला। और ताज्जुब वाली बात ऐसी है कि वह आंसर उसी ट्रांजैक्शन ने दी है। मुझे तो सिर्फ पूछना था उसको कि भाई मेरे बिजनेस में क्या है, तो उसने तुरंत अपने को विद इन अ सेकंड आंसर रिसीव्ड फ्रॉम दैट ट्रांजैक्शन। 50,000 रुपए आपके बिजनेस में आए। इसी वजह से मैंने कैश अकाउंट डेबिट, क्यों तो डेबिट तो मैं मेरे मन से तो लगा ही नहीं रहा हूं, यहाँ लिखा ही है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट है। अब सवाल ये पैदा हुआ मेरे मन में कि भाई हम क्रेडिट किसको देंगे, तो मुझे तो पता चला ये रीड किया और आप भी देख रहे हैं इसको, राम ओनर है, राम पर्सन है। इसी वजह से राम का नाम पर्सनल अकाउंट में आएगा। और पर्सनल अकाउंट में मैंने 3 पर्सन्स बताए थे आप लोगों को दूसरे लेक्चर में। क्या बताया था मैंने? पर्सनल में नेचुरल पर्सन आएगा, यानी राम, श्याम एक्सेट्रा। ठीक है, और दूसरा कंपनी का नाम मतलब आर्टिफिशियल पर्सन आएगा, टाटा कंपनी, बैंक्स वगैरह, इंस्टीट्यूशन, संस्था वगैरह, ये भी आएगी। और रिप्रेजेंटेटिव, अब ये है बात रिप्रेजेंटेटिव। राम का रिप्रेजेंटेटिव बिजनेस में कौन है? तो कैपिटल। आई बात समझे? इसी वजह से आपके मतलब अभी क्लियर हुआ होगा कि भाई मास्टर जी को क्या कहना है। ठीक है, और कोई भी व्यवसाय ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ना करे, यानी कैपिटल ना लगाए, जिसको पूंजी बोलेंगे, यह नहीं लगाया और व्यवसाय शुरू हो गया। यह बात तो मतलब हो ही नहीं सकती। इसी वजह से मैंने आपको पहले ट्रांजैक्शन समझाया कैसे कि भाई राम स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000। और ऐसा देखिए कि आप आपके घर में हो और मैं मेरे घर पे हूं। ठीक है, और मैं ऐसे चाहता हूं कि भाई आपको समझ में आना चाहिए, और समझाने के लिए ऐसा हो जाए कि भाई 2-4 ही ट्रांजैक्शन अगर अपन ने मतलब 30 मिनट में कंप्लीट किया तो वो भी बोलूंगा कि आपको समझ में आ गया तो मुझे अच्छा लगेगा। इसी वजह से मैं बार बार 3-3 बार रिपीट करना चाहूंगा कि भाई राम स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000। तो आपके समझ में आया होगा कि जब भी कोई बिजनेसमैन पैसा लगाता होगा तो उसको आप बिजनेस के हिसाब से कैपिटल
कैपिटल करके इंडिकेट करना बहुत ही इजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है कि 50,000 रुपए आप इस है, आप पहले थिंक करो कि क्या है, ये एसेट है, आपको पता चला ये एसेट है, इसी वजह से ये एसेट है, तो फिर देख लेना एसेट रियल में जाएगा, पर्सनल में जाएगा या नॉमिनल में। ठीक है, आप बोलेंगे नॉमिनल में जा ही नहीं सकता है, आपको तो याद करना ही है वो लॉसेस एक्सपेंस और गेन इनकम आता है, चलो छोड़ दीजिए। कैश पर्सन है, चल सकता है, आपसे बात कर सकता है, ये भी आपको ही पता है, क्योंकि पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे रियल में एसेट आती है, ये सही बात है, डेबिट व्हाट कम्स इन। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन किया उसको कि भाई मेरे बिजनेस में क्या है, तो उसी ट्रांजैक्शन ने मुझे आंसर दिया, अरे भाई आपके बिजनेस में 50,000 रुपए लाभ लेके आया, इसी वजह से कैश अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, फिर मैंने देखा कि राम ये तो पर्सन है, पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसीलिए तो क्रेडिट गोज टू राम, सही बात है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि आप कोई किसी से भी पूछे कि भाई व्यवसाय शुरू किया, तो आप ही पूछते उसने कितना कैपिटल लगा, मतलब ये कैपिटल वर्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, राम को, इसीलिए टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट लिखते समय जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 कॉलम बना दिए हैं, ठीक है, एक डेबिट के लिए और एक क्रेडिट के लिए। यह तुम्हारा रूलिंग हुआ जर्नल का, ये ऐसा स्केच रहेगा और बहुत ही आसान तरीका है, कोई इतना मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं है। ठीक है, ये डेट, ये पर्टिकुलर्स, एलएफ, हालांकि एलएफ का फिलहाल आप टेंशन मत लेना, मैं अच्छे ढंग से आपको फिर समझा दूं, अभी समझाने से कोई मतलब भी नहीं। ये डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। और मैं भले बात ही जानता हूं कि जो भी 10th पास हो गए और 11th कॉमर्स में एडमिशन लिया उनके लिए तो ये सब्जेक्ट बहुत ही नया है। इसके पहले मैंने 3-4 वीडियो मतलब लेक्चर जो अपलोड किए थे वो थोरोली इंग्लिश में मैंने मतलब समझाया था। ठीक है, मुझे भी ऐसा लगा कि भाई हिंदी से ताल्लुकात रखती जिनकी मदर टंग हिंदी है, मराठी है और भी जैसे है, तो उनको समझ में आने के हिसाब से फिर मैंने थोड़ा चेंज किया इसको कि भाई जैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे अपन, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत महत्वपूर्ण है और अपना हिंदी तो सवाल ही नहीं आ रहा है, इसी वजह से थोड़ा मिक्स वेज करके इसको अपन समझाने ताकि आपको समझ में आना चाहिए। सवाल मेरा नहीं कि मुझे इंग्लिश में उसको एक्सप्लेनेशन करते आता है या नहीं है, मैं आपने तो मेरे पहले 3-4-5 लेक्चर्स अगर देखे होंगे तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई मास्टर बोल लेता है और अच्छे रंग से और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसीलिए मैंने हिंदी थोड़ा उसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक्सप्लेनेशन देना है। एक्सप्लेनेशन मींस एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्री। आई पास दिस एंट्री, why I pass this entry, so there is a need to give explanation. Explanation means named as a narration, so I want to use a word here narration। मुझे यहाँ पे narration देना है, कैसे देना है, बहुत आसान है, being शब्द लगा देना है आपको, being business started, बस business started, बहुत ही आसान तरीका है बिजनेस स्टार्टिंग कि भाई अपन कैसे लिखेंगे, क्या लिखना चाहिए, जो ट्रांजैक्शन हुआ बस वही क्रक्स पकड़ के यहाँ पे लिख डालना है और इसके नीचे एक लाइन खींच लेने का। ठीक है, मतलब स्केच द सिंगल लाइन। और यहाँ पे डेट का कॉलम है, तो आज का 1 सितंबर है, इसी वजह से ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको। ठीक है, या तो फिर 2020 ऐसे भी लिख सकता और उसके नीचे सितंबर, ठीक है, 1 ऐसे भी लिखने की फैशन है। आई बात समझे? ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं तुम लोग। ठीक है, दूसरा ऐसा है, अभी मैं दूसरा ट्रांजैक्शन लेता हूं, समझा अपने को तो मुझे तो समझाना है और आपको समझना है। दूसरा ट्रांजैक्शन लेता हूं, क्या किया राम ने, मींस आउट ऑफ 50,000 he deposited ठीक है रुपीज 10,000 इन बैंक। ठीक है, इन क्या, बैंक, बहुत ही आसान है। ही डिपॉजिटेड रुपीज 10,000 इन बैंक, क्योंकि बिजनेस है। थिंक करिए, मींस एट प्रेजेंट टेंस, कैन इट बी पॉसिबल टू डू द बिजनेस विदाउट द बैंक? आंसर इज नो। देयर इज अ नीड टू ओपन द बैंक अकाउंट। ठीक है, और बिजनेसमैन
open the current account, not saving account. That is very important here. He means there is a need to means open a current account, not saving account. क्योंकि सेविंग करंट अकाउंट में क्या होता है, आप कितने भी बार डिपॉजिट कर सकते हैं और कितने भी बार आप विड्रॉल कर सकते हैं, और करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और हमेशा पासबुक कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। अब ये अलग बात हो गई, आजकल तो सब ऑनलाइन है, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन आपको पहले तो जो पास्ट टेंस था उसको उसका बेस तो छोड़ नहीं सकते आप लोग, ठीक है। सो ही डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक, द नेम ऑफ बैंक सपोज आई से हियर एसबीआई, ठीक है। तो उसने एसबीआई बैंक में एक अकाउंट 10,000 रुपए डिपॉजिट करके ओपन किया है। तो आप थिंक करो, ठीक है, इसने इस राम ने एक अकाउंट ओपन किया 10,000 एसबीआई में। तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी ये पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल तो है ही नहीं। तो थिंक करो, पर्सन है, आपने डिसाइड किया। नहीं तो मैं आपको पूछ रहा हूं अभी कि भाई एसबीआई जो है वो पर्सन है या समझो एक्सपेंस है या समझो एसेट है, तो आप आंसर क्या देंगे मुझे? थिंक करो थोड़ा सा, क्या समझ में आएगा कि सही बात है भाई। मास्टर जी ने तो एक्सप्लेन करवा दिया था कि भाई पर्सनल बैंक कौन आता है, नेचुरल पर्सन आता है, आर्टिफिशियल यानी बैंक, कंपनी, संस्था वगैरह ये आता है। उस बेस पे तो तुम मुझे बोलोगे कि सही बात है सर, यह एसबीआई पर्सनल अकाउंट में आएगा। आई बात समझे? अब क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट में आप उसको डिफाइन कर दीजिए, क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इसमें देखिए, डेबिट द रिसीवर, फिर थिंक करो इस आपके ट्रांजैक्शन में, ही डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक, बैंक इज अ रिसीवर और गिवर। बताओ, आई बात समझ है? क्या कहोगे आप लोग? रिसीवर है, क्योंकि आपने बैंक को पैसे दे दिए, तो बैंक के थोड़ी ना हो पैसे, आप जब चाहो वो विड्रॉल कर सकते हैं। इसी वजह से नाउ एट प्रेजेंट टेंस बैंक इज अ रिसीवर। सिंपल बात है, इजी टू अंडरस्टैंड। सो एज पर द पर्सनल डेबिट द रिसीवर, सो यू कैन से जस्ट लाइक एसबीआई अकाउंट, एसबीआई अकाउंट डेबिटेड टू। अब थिंक करो, आपने एसबीआई अकाउंट डेबिट किया पर्सनल अकाउंट के मुताबिक, क्या किया इसने? क्या किया? 10,000 रुपए, ओनर ने 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए। अब कैश के बारे में सोचो, और आपने भी सोचा पहले, कैश ये क्या है? एसेट है, और यह एसेट निश्चित तौर पे आप आसान मतलब हो गए, इसके लिए बहुत ही आसान हो गया आपके लिए कि आपको अभी डाउट ही नहीं रहा कि भाई कैश कहां जाएगा, रियल में जाएगा। सो रियल के मुताबिक डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप सोचो इस ट्रांजैक्शन के बारे में कि भाई कहां गया अभी, देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये तो व्हाट कम्स इन तो है ही नहीं, व्हाट गोज आउट, सही बात है। व्हाट गोज आउट फ्रॉम योर बिजनेस, तो कैश गोज आउट फ्रॉम योर बिजनेस। सो आई वांट टू गिव क्रेडिट टू कैश अकाउंट, वेरी इजी, कैश अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट लिखना है आपको 10,000 रुपए, डेबिट के कॉलम में बराबर एसबीआई अकाउंट डेबिट है, तो इसके सामने लिख डालिए आप 10,000 रुपए, बहुत आसान हो गया, ठीक है। और कैश अकाउंट के सामने क्रेडिट में लिख डालिए 10,000 रुपए। आई बात समझ है? हो गया क्लियर? और यहाँ पे मुझे नरेशन देना है, तो मैं लिखूंगा बीइंग, बहुत ही आसान, बैंक अकाउंट ओपन, बस हो गया, बैंक अकाउंट ओपन। कोई ज्यादा कुछ मतलब कोई फैंसी लिखना नहीं है वहां पे, नरेशन जो हुआ वो लिख डालना, बीइंग बैंक अकाउंट ओपन, ठीक है। और स्केच द लाइन, डेट भी लिख डालने का, कब उसने ओपन किया, तो 3rd ले लेता हूं मैं, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे फैशन, जैसे मैंने 2020 सितंबर 1 तो लिखा है, ये सितंबर का ही ट्रांजैक्शन चालू है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस मेंशन किया तो हो गया। आई बात समझे? क्योंकि रनिंग है इस वजह से। अब एक दूसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं अपन, ठीक। दूसरा मतलब ऐसा कि ही परचेस फर्नीचर, ठीक है। ही परचेस फर्नीचर, उसने परचेस किया फर्नीचर, कितने रुपए का? तो मैं खुद ही बोल रहा हूं आपको,
5,000 रुपए का, ठीक है, 5,000 का। अब इस ट्रांजैक्शन की देखिए, परचेज फर्नीचर, ठीक है ना। मैंने क्या किया है कि मैं पूरा ट्रांजैक्शन नहीं लिखना चाहता, उसमें टाइम भी जाता है और मैं आपको तो बोल ही रहा हूं, तो उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहा हूं मेरे शब्द पे। जैसे मैंने बोला ही परचेज फर्नीचर, तो आप अगर देख रहे होगे तो समझ में आ जाएगा, कि नहीं लिखा तो भी चलेगा, परचेज फर्नीचर। अब थिंक करूंगा मैं, फर्नीचर 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 क्या है, अभी थिंक करूंगा, एसेट, इट इज अ एसेट। तो यह एसेट पता चल गया है कि यह एसेट है, तो एसेट कौन से अकाउंट में जाएगा, तो रियल में जाएगा, क्योंकि आपको तो पता होगा कि भाई ऑल एसेट कम अंडर द रियल अकाउंट। बहुत यार, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फिर रेस करो बच्चा, व्हाट कम्स इन योर बिजनेस, फिर आपको आंसर मिल गया। क्या मिल गया आपको, फर्नीचर आया। आई बात समझे। इसी वजह से अपन लिख डालेंगे यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। आई बात समझे। 2, अब रहा क्रेडिट कोस्ट। सिंपल बात है, फर्नीचर परचेज किया 5,000 का, चुराया थोड़ी अपन ने, पैसे दिए उसको, तो फिर पैसे दिए ने कैश हुआ, कैश क्या हुआ, एसेट हुआ। सिंपल सी बात है, एसेट हुआ। तो यह जो एसेट है कहां जाएगा, रियल में। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप इसको पूछो व्हाट गोज आउट फ्रॉम माय बिजनेस, तो वो बोलेगा कैश गोज आउट फ्रॉम योर बिजनेस। आई बात समझे। इसी वजह से टू कैश अकाउंट, बहुत आसान है, टू कैश अकाउंट। आई बात समझे। अब लिखेंगे अपन अमाउंट, डेबिट के कॉलम में बरोबर फर्नीचर अकाउंट डेबिट के सामने 5,000 रुपए लिखिए, ठीक है। और मेरे साथ साथ भी आपने लिखा, तो आप आपके घर में ही अकाउंट सीख जाओगे, और आपको कहीं जाके, शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं तो ये चाहता हूं कि आपको कहीं जाके ट्यूशन भी लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि और आप मेरे लेक्चर्स रेगुलर देखिए, और कुछ आपको प्रॉब्लम आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस कीजिए, मैं उसको सॉल्व भी करूंगा और मदद करूंगा आप लोगों को, ताकि आपके समझ आए। मेरा मकसद क्या है कि स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, बस यही मेरा मकसद है। बाकी मुझे इतना कुछ उसमें दिलचस्पी नहीं रहेगी, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कोई मतलब नहीं। इस वजह से अपन धीरे से पढ़ेंगे, और आप मेरे से अटैच रहो, मेरे लेक्चर से, तो आपको मैं नेचुरल बताता हूँ कि आपको घर में ही अकाउंट आएगा, मतलब आएगा 100% गारंटी। अपन नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेस, बहुत ही आसान है, बीइंग फर्नीचर परचेस। लिखता नहीं हूं मैं, क्योंकि टाइम भी जाता है और लिखने में, समझ में आया होगा। बीइंग फर्नीचर परचेस, हाउ मच अमाउंट, पे 5,000। आई बात समझे। और एक लाइन स्केच कर दीजिए, हो गया। आई बात समझे। और थोड़ा सा अपन उसको मतलब उसको प्रैक्टिस के तौर पे लेंगे। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000, 50,000 रुपए लेके उसने व्यवसाय शुरू किया, ये कैश है। आप देखिए रियल अकाउंट के मुताबिक डेबिट व्हाट कम्स इन, इसी वजह से अपन ने बोला कि भाई बिजनेस में क्या आया, कैश आया, इसी वजह से कैश अकाउंट डेबिटेड। किसने लाया, तो भाई राम ने लाया, इसी वजह से रिप्रेजेंटेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया, टू कैपिटल अकाउंट। और 50,000 रुपए आप डेबिट में लिखे और क्रेडिट में लिख डालिए, ठीक है। बाद में था ही डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक, सिंपल था, बैंक में उसने पैसे डाले। बैंक यह पर्सन है, पर्सनल का रूल इस्तेमाल करो, डेबिट द रिसीवर, बैंक की रिसीवर हुई, इस वजह से एसबीआई अकाउंट डेबिट। आपने पैसे डाले, आपके जेब में से पैसे गए, इस वजह से टू कैश अकाउंट, ठीक है। बाद में था ही परचेज फर्नीचर, फर्नीचर यह क्या हुआ, एसेट हुआ, और यह एसेट रियल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो रियल में क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सिंपल बात है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, फुकट में तो आए नहीं, पैसे दिए हमने, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट गोज टू कैश अकाउंट। आई बात समझे। तो आप देखिए मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ो, और आपको घर में आ ही जाएगा, सवाल ही नहीं आ रहा है। और आपके जो भी कलीग्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, उनको भी बताओ, और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर भी करो उसको, और समझ भी लो, आपके फ्रेंड्स को बताओ। और बहुत ही मैं आसान
किस्तों में पढ़ा दूंगा आप लोगों को, और घर पे ऐसा नहीं कि इतना ही पढ़ाना है। इसके बाद जैसे 11 के बैंक रिकंसिलिएशन है, एडमिशन है, उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बहुत कुछ चैप्टर्स हैं। यह चैप्टर्स में धीरे धीरे आप लोगों के एकदम मतलब नज़दीक आके समझा दे रहा हूँ। इसी वजह से आप आपके दोस्त को या सभी जिन जिन लोगों से भी उनको बताओ और शेयर भी कीजिए, उसमें सब्सक्राइब करो ताकि आपको मेरे पास से एक नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और एक अच्छा अटैचमेंट बने रहेगा, ताकि आप देश के कोई भी कोने में रहे और कहीं भी धरती पे रहो तो भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको बिल्कुल उसमें 100% मदद करूंगा। और मेरे लेक्चर निश्चित ही, अब ये आप मैं 3 बार ऐसा बोल रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा है कि मुझे कोई प्रोडक्ट बेचना है, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि यह कीजिए आप, और घर पे ही आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में और काफ़ी ट्रांजैक्शंस लेंगे और आप उसको थोरोली पढ़ो। और मेरे पहले 3 लेक्चर्स आपने देख लेना, वो पूरी इंग्लिश में मैंने दिए थे। और अब ये थोड़ा सा क्योंकि प्रॉब्लम्स है तो समझाने के लिए मदर टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं अपन। तो आज के लिए इतना, और बाद में मैं दूसरे लेक्चर में और 4 मतलब प्रॉब्लम्स लूँगा ताकि और क्लैरिफिकेशन आपको हो जाए। थैंक यू।